Good evening, everyone. Today we have games and tournaments too. We will see sets based upon past year's CAT paper. Yeah, let us start. Same approach. I'll give you some time first to try and solve these questions, and then we'll have the discussion. So there's an entire set on the screen. These are the questions. Today I analyzed one of the mock papers for one student offline batch. See, one thing you need to do is as soon as you look at a set, you first look at questions. Suppose if Sanvi scores, if Avanya scores 5, and which of the following are possibly true. So this is a kind of set which will require multiple tables. There's a if condition, if there's a if condition, and there's a one that asks for possibilities. One is possible, two is possible, three is possible, all are possible. So you need to understand this will take maybe two or three tables. Then you start reading and then decide banega ki nahi banega. You have 2 to 3 minutes, 2 minutes to decide, and then you have close to 8 minutes to solve. Go ahead, start. Up to three possibilities set have been seen in the exam. The largest set that I have seen was arranging people, and it had 5 to 6 possibilities, but hints were given in questions, which made it easy.
Do you need more time or should I try and solve it for you? First, I will read, explain you what is being said, the usual stuff. What are the steps required to solve it? We'll discuss that. Do you need more time or should I start explaining? Comment, guys. All right, let me start. In 2021, IIFT has announced Student of the Year competition, which has two steps: the preliminary stage and the final stage. The preliminary stage comprised of overall academic excellence in 5 trimesters of the coursework. When the result of preliminary stage were announced, it was found that only 5 students, Avanya, Arav, Sanvi, Vagisha, Raghav, qualified to compete in the final stage of Student of the Year 2021 competition. In the final stage, there were 5 rounds of extracurricular activities wherein the students could score from 1 to 10 points in each round. How many rounds are there? 5 rounds. 5 rounds and scores are 1 to 10. The 5 extracurricular activity rounds were debate, extempore, business quiz, business plan competition, case study analysis. The student with maximum points across these 5 rounds would be considered as winner and would take prestigious trophy Student of the Year 2021. So at the end of these 5 rounds of the competition, when the jury asked for the scorecard to find out the final winner, the scorer informed them due to some technical glitches, several entries have been deleted, and jury was present at the following table. So every round is for 10 points. Every round is 10 points. Earlier, something has happened, we don't care. Right now, these 5 people, 6 people are competing for the final award of Student of the Year. Some data has been erased, some data is missing. Out of 10, the scoring is going on. No 2 students have scored equal points in the same round. So this is one round, debate round. So no 2 numbers can be same. No 2 numbers can be same. अगर 10 आ गए दोबारा 10 नहीं आएगा. So it's a Sudoku kind of thing. Sudoku. Vertically, the number cannot be same. Vagisha scored an odd number of points in case study round. Arav's total points was a multiple of 8 and it was the least among all. There were no tie between any 2 students in overall points. मतलब कि जो total value है यहाँ पर, no 2 people can have equal points. Vagisha scored same points in the following rounds: debate round, extempore round. None of the missing scores were less than 4 in any round. So scores cannot be 1, 2 or 3. Scores must be 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10. The missing scores cannot be less than 4. They can be equal to 4. Avanya won the competition and won the prestigious trophy of the Student of the 2021. Chalo. Then there are questions on possibilities and there are questions on missing data. Chalo. So I will again go back to the information. No 2 numbers are equal. Vertically, 2 numbers cannot be equal. Vagisha has scored an odd number of points in the case analysis round. So Vagisha is this person. I expect there to be an odd number here. What are the numbers? 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये number है. So 9 cannot be there. It can be either 5 or 7. देखो दो ही possibility है. Because the empty slots, empty spaces must be 4 or above. Vagisha has scored an odd number of points in the score analysis.
So I am writing here in the corner either 5 or 7. Confirm ho gaya to I'll write in the middle in large font. Done. Done. Arav's total score was a multiple of 8. And it was least among all. This is the guy named Arav. I'm expecting a multiple of 8. It must be least. So what is the multiple of 8 below 29? 24 is a multiple, 16 is a multiple, these are multiples of 8. Now you see, in front of Arav, see, horizontally numbers might be same. A student can score same point multiple times. It is possible. Look at this. The minimum score can be 4 plus 4 plus 4 plus 4, 16 plus 7. 16 plus 7, 23 तो है ही है. अगर 23 है ही है, that means the score of this fellow is 24. क्यों? क्योंकि आरव का score must be minimum and multiple of 8. Multiple of 8 can be 16 or 24. क्योंकि minimum value is 4. Minimum value anywhere is 4. Can I say that means Arav का जो score होगा, there are how many slots? 1, 2, 3, 4 and 5. Arav का score will be 4, 4, 4 and 5. Can I reach that conclusion? Is that conclusion correct? जो missing spots हैं, क्योंकि we need a multiple of 8 and multiple must be below 29. 16 तो नहीं हो सकता. 16 तो नहीं हो सकता because 4, 4, 4 minimum 16 ऐसे ही हो गया. Plus 7, 23 हो गया. That means आरव के जो स्कोर्स होंगे दे विल बी 4, 4 and 5. अब ये देखो, आरव का यहां पे 5 नहीं हो सकता बिकॉज इट कैन नॉट बी सेम स्कोर इन द राउंड. वर्टिकली यहां पर 5 नहीं हो सकता. इट हैज टू बी 4 हियर. तो 5 यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है और यहां पर हो सकता है. तो एक 4 मैंने कट कर दिया. आरव का हैव टेकन केयर ऑफ. There is no tie between two students in overall points. ये हमने ध्यान में रख लिया था. Two scores cannot be equal. Vagisha scored same points in the rounds which are debate and extempore. ये Vagisha है. इनका debate में और extempore में same points हैं. Same score है. Same है. अब वो क्या है? I do not know. So मैं corner में लिख देता हूँ X. This is X and X. It will be equal. None of the missing values is less than 4. ये हमने पहले ध्यान में रख लिया है. Avanya won the competition, the prestigious trophy. इनको prestigious trophy मिली student of the year. मतलब अवन्या से ऊपर किसी का भी स्कोर नहीं है. Let us slow down. एक एक करके you need to start from where, जहां पर information ज्यादा हो. Do you see vertically information यहां पर ज्यादा है. Vertically there is only one missing block here, और horizontally यहां पर information ज्यादा है. There are 2 missing blocks. बाकी हर लाइन में 3, 3, 4, 4 missing blocks हैं. So either you start focusing on Avanya or you start focusing on business quiz round. आपके पास स्कोर क्या हो सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 तो ऑलरेडी आ चुका है. 5 ऑलरेडी आ चुका है. 4 ऑलरेडी आ चुका है. 7 ऑलरेडी आ चुका है. So this score can be 6, 8 or 9. ऐसे 8 भी देखो horizontally आ सकता है. Horizontally same score can be there. तो मैंने इसे कॉर्नर में लिख दिया. It can be 6 or 8 or 9. अब चलते हैं अवन्या की ओर. अवन्या has a score of 35. What is the total here? 10 plus 7, 17, 17 plus 9, 17 plus 9, 26. 26 मतलब कि अवन्या का यहां पर 4 होगा तो यहां 5 होगा, यहां 5 होगा तो यहां 4 होगा. अब और ध्यान दो, क्योंकि वर्टिकली सेम स्कोर कैन नॉट बी देयर. अगर यहां पर 4 है तो यहां पर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि आरव हैज गॉट ओनली पॉसिबिलिटी एज 4 और 5, 4 और 5. तो बेटा अगर ये 4 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 4 है. सेम गोज हियर. ये 5 है तो ये 4 है, तो ये 4 है तो ये 5 है. That means ये पक्का 4 है. This is 100% 4. This is 100% 4. ये कंफर्म है. There is no doubt about this. अभी इनका जो स्कोर है 33.
हाउ कैन आई क्रिएट 33? तो अगेन इसमें पॉसिबिलिटीज बनेंगी बेटा अभी. इफ दिस इज 33 एंड दिस इज 5, दो सेट बनेंगे. मैं ट्राई करता हूं दोनों बनाने के लिए. आई थिंक सो दो बनेंगे. मल्टीपल होंगे तो वील सी. इफ दिस इज 5, अगर ये 5 है, ये 5 और ये 8, 13, 13. अब 13 के साथ में इफ आई पुट अ 6 हियर, देखो इफ दिस इज 5 एंड दिस इज 8 एंड इफ आई पुट 6 हियर, तो 6, 8, 5 ये हो गया 19. ये दोनों नंबर जो हैं, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं हो पाएंगे क्योंकि कितना चाहिए 33. यू पुट 5 हियर, यू पुट 8 हियर, यू पुट 6 हियर, दैट इज 19. 19, 19. तो मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 33. तो ये दोनों जाएंगे 7, 7, 7, 7. लेकिन आप देखो यहाँ पे 7 अलाउड नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी 6. विथ 5 इट कैन नॉट बी 6. अगर ये 8 हो जाए, इफ दिस बिकम्स 8, 8, 8, 16, 8, 8, 16 प्लस 5, 21, मतलब यहाँ 12 चाहिए. तो इट कैन बी 6, 6 विथ 8. इट इज पॉसिबल. अगर ये 5, ये 8 और ये 9 हो जाए, 5 प्लस 8, 13 प्लस 9, 22. 22 मतलब ये दोनों 11 हो जाएंगे. 11 हो नहीं सकते. तो विथ 5 ओनली पॉसिबिलिटी इज 8, 8, 6, 6. 5 का एक ही पॉसिबिलिटी है. अगर ये 7 हो जाए, ये बेटा कैट, दिस इज कैट अंडरस्टैंडिंग पॉसिबिलिटीज. ये अगर 7 हो जाए, इफ दिस बिकम्स 7, 7 प्लस 8, 15, 15. ध्यान देना 15. अगर ये 6 हो जाए, 15 प्लस 6, 21. ये 6 हो जाए 21. तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? 6, 6, विच इज पॉसिबल. हमें क्या करना? ये 7, ये 8, 15, 15 प्लस 6, 21. तो मैं ब्लैक में लिख रहा हूं, देखो ये ब्लैक वाली अलग रो है. तो ये भी 6 और 6 हो जाए. अगर ये 7 और ये 8 हो जाए, तो दिस इज 7 प्लस 8. कितना? 7 प्लस 8, 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना हो गया? 15 प्लस 8, 23. अब अगर 23 हो गया और आपको 33 चाहिए, तो इनको होना पड़ेगा 5, 5. लेकिन अगर यहां पर 5 है, तो ये दोनों ऑलरेडी 5 है, तो 7 के साथ में 8 नहीं आ सकता. इट कैन नॉट बी 8 विथ 7. इफ दिस इज 7, दिस इज 8 और ये 9 हो जाए, 7 प्लस 8 कितना? 7 प्लस 8, 15 प्लस 9, 24. अगर ये 24 है, तो ये दोनों 4.5 हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल. तो क्या कंफर्म हो गया? 100% इसको 6 होना ही है. आप कुछ भी कर लो, इसको 6 होना है. दिस इज 100% ट्रू, 100% कंफर्म. अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है? ये 8 है तो ये 5 है, ये 6 है तो ये 7 है. स्लो डाउन. अभी तक कोई डाउट है? लेट मी नो. एनी डाउट सो फार? क्या कंडीशन है? वर्टिकली नंबर सेम नहीं हो सकता. हॉरिजॉन्टली कोई कंडीशन नहीं बोला है, तो हॉरिजॉन्टली नंबर कैन बी सेम. Any doubts so far in arrangement of these numbers? Very good. Others confirmed? अभी जो एम्प्टी है वहां पॉसिबिलिटीज है. सानवी का वी कैन ट्राई, राघव का वी कैन ट्राई. अगर कुछ हिंट मिलता है तो लेट अस सी. सानवी का टोटल वी डू नॉट नो किस रेंज में आएगा, बट किसी के बराबर नहीं होगा. 24 से ऊपर होना चाहिए और 35 से नीचे होना चाहिए. सानवी देर इज नो हिंट सो फार. Raghav also there is no hint so far. Complete the table so far. Comment done. We'll go to the next slide. Very good. Others comment. चलो, वेरी गुड. चलो, सो ये कंफर्म हो गया था. दिस इज 6, दिस इज 6. अगर ये 5 है, क्या था? ये 5 है, तो ये 8 है. ये 7 है, तो ये 6 है. ये कंफर्म था. अब क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द करेक्ट पेयर ऑफ पॉसिबिलिटीज, इनमें से कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है, विच ऑफ दीज इज अ पॉसिबिलिटी। क्या राघव 8 स्कोर कर सकता है डिबेट में, दिस इज राघव। कैन राघव स्कोर 8 इन डिबेट, यहां पे क्या राघव का 8 आ सकता है। तो मे बी वी डू नॉट नो, एक बार चेक करते हैं। दिस इज व्हाट 3 + 10 13, 13 प्लस अगर ये 8 हो जाए दैट इज 21, 21 ध्यान से देखना 21। तो अगर आपको 29 से मैच करना है, 29 से हमें और कितने पॉइंट चाहिए, वी नीड 8 पॉइंट्स मोर। 8 पॉइंट कैसे बनेगा, 4 और 4 से। लेकिन ये वाला 4 इससे मैच हो गया, विच इज नॉट अलाउड। वर्टिकली यू कैन नॉट हैव सेम नंबर। अगर ये 8 हो जाए, इफ दिस बिकम्स 8, तो ये बन जाए 21। 29 के लिए आई नीड 8 मोर। मिसिंग नंबर कैन बी फ्रॉम 4, 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कैन बी मिसिंग नंबर। तो 8 बनाने का तरीका 4 4, ये दोनों 4, ये भी 4 बन जाएगा, तो ये ओवरलैप कर जाएगा। दिस कैन नॉट बी ट्रू। पॉसिबिलिटी 1 कैन नॉट बी ट्रू, ये सारे कट गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, पॉसिबिलिटी 3 कॉमन है। मैं क्यों सोचूं, मुझे क्या चेक करना है, 2 चेक करना है। Vigisha's score in extempore round is twice of Arav in the same round. विगिशा का स्कोर एक्सटेम्पोर राउंड में आरव के स्कोर से डबल हो सकता है क्या, क्योंकि इसका स्कोर 6 है, तो डबल किसका होगा, डबल किसका होगा 3 का। तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं है यहां पे किसी का भी स्कोर। तो कैन सेकेंड बी ट्रू, नो। विगिशा का स्कोर, यहां पे आरव का स्कोर क्या है, 4 और 5। 4 और 5 का डबल क्या होता है, 8 और 10। 8 और 10 तो है नहीं, ओनली 6 है। विगिशा स्कोर्ड 6 पॉइंट्स इन डिबेट राउंड, ये तो रहा कंफर्म है, ये तो 6 आ गया कंफर्म है। देखो हमने सारे पॉसिबिलिटी ले लिए, टू अचीव 33 वी टुक एवरी पॉसिबिलिटी। तो 6 तो कंफर्म है। तो व्हाट इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू 100%। विगिशा स्कोर्स मोर पॉइंट्स देन अवन्या इन बिजनेस क्विज राउंड। बिजनेस क्विज में अवन्या का स्कोर 7 है, 7 है, 7 है। विगिशा स्कोर्स मोर पॉइंट, मे बी मे नॉट बी, हाउ डू आई नो। बिजनेस क्विज राउंड में इसका 6 भी हो सकता है और इसका 8 भी हो सकता है, बोथ आर पॉसिबल, आई कैन नॉट से फॉर श्योर। तो करेक्ट पेयर ऑफ पॉसिबिलिटीज, only possibility this is true, others maybe might be, maybe might be, 3 is true for sure। राघव का 8 पॉइंट्स गलत है, नॉट पॉसिबल। विगिशा का स्कोर ट्वाइस ऑफ आरव, नॉट पॉसिबल। 1 और 2 कट गया, 3 डेफिनेट है, कंफर्म है, इट इज ट्रू। एंड फोर्थ वी कैन नॉट से, क्योंकि अगर विगिशा का स्कोर 8 है तो इट बिकम्स ट्रू, विगिशा का स्कोर 6 है तो 7 से लेस हो जाएगा, इट बिकम्स फॉल्स। एनी डाउट्स इन दिस। तो आई कैन टेल यू, जो भी एफर्ट आपकी लगनी है दैट इज ओनली इन द फर्स्ट 6 to 8 मिनट्स, जब आपको टेबल कंप्लीट करना है। और देखो अभी तक एक ही टेबल है, ये सेम टेबल है, देखो दिस इज द सेम टेबल। तो एक ही टेबल में वी हैव रिटन 2 पॉसिबिलिटीज। ये 4 5 5 4 वाला पॉसिबिलिटी वी हैव रिटन इन द सेम टेबल, और ये 5 7 6 8 हमने सेम में लिख दिया। अभी तक 2 टेबल का जरूरत नहीं पड़ा। अब आया if Avanya scores 5 points in B plan competition, the sum of 2 of the 3 missing values for Raghav is a prime। देखो नया नया कंडीशन बता रहा है, राघव का अभी कितना नंबर मिसिंग है, 3। इन तीन में से 2 का एडिशन क्या होगा, प्राइम होगा। विच ऑफ द पॉसिबिलिटी इज करेक्ट। अब ये टेबल खराब होगा, देखो
आपने अवन्या को बोला बिजनेस प्लान में 5 नंबर हैं तेरे, तो अगर अवन्या के 5 नंबर है तो आरव के 4 नंबर है, तो आरव के 5 नंबर होंगे, यहां पे अवन्या के 4 नंबर होंगे। ये कंडीशन कंफर्म हो गई। अब इसके बाद आप कह रहे हो 2 ऑफ द 3 मिसिंग वैल्यूज आर प्राइम। अभी राघव को देना कितना है मेरे को 29 में से 13 जा चुका है, 29 में से 13 जा चुका है, मतलब जो 3 नंबर्स हैं इनको मैं ए बी सी बुला देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या नंबर था, ये 6, ये 6, ये 5, तो ये 8, ये 7, तो ये 6। ये कंफर्म है। अब ये तीनों मिलाकर कितने हैं, ये तीनों मिलाकर हैं 16। अब इनमें से 2 प्राइम है, चेक करते हैं आपके पास नंबर्स कौन से हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो मैं चाहूं तो पॉसिबिलिटीज में खेल सकता हूं, 3 नंबरों को मिला के 16 कहां से बनता है, ट्राई करते हैं। 4 + 5 9, 9 + 7 4, 5, 7 16। मैं इनसे भी चेक कर सकता हूं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं 16 नंबर बना रहा हूं। Can I make 4 + 6 + 6 16? 4 + 6 + 6 16। 4 + 7 हो गया 11, 11 + 5 हो गया फिर से 4 + 8 12 + 4, 4 + 8 + 4। लेकिन आपको 2 नंबरों का एडिशन प्राइम चाहिए। देखो इनमें से किसी का भी एडिशन प्राइम नहीं है, तो मैं इनको कट कर दे रहा हूं। 4 + 9 13, 13 + 3 16 हो नहीं सकता, तो 9 से आगे जाएगा नहीं 4। 5 + 6 11, 11 में क्या ऐड करोगे 16 के लिए 5, 5 + 5 + 6 16। 5 + 7 कर दो, 5 + 7 12, 12 + 4 16, तो लिखा है पहले, ये तो रहा आपका पहले से ही। 5 + 8 कर दो 13, 3 तो है नहीं, हो नहीं सकता। 6 + 7, 6 + 7 13, 3 तो है नहीं, आगे जा नहीं सकते आप। तो बेटा 2 ही पॉसिबिलिटी है आपके पास, क्योंकि प्राइम भी तो चाहिए ना। तो एडिशन इज 5 + 4 + 7 एंड 5 + 5 + 6। लेकिन 5 + 5 + 6 में 5 + 6 is 11 which is prime, 4 + 7 is 11 which is prime। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं आपकी। राघव स्कोरिंग 5 पॉइंट्स इन केस स्टडी, ऐसा हो सकता है क्या? केस स्टडी में राघव 5 पॉइंट ला सकता है क्या? देखो अगर विगिशा का 7 आ जाए तो राघव का 5 क्यों नहीं आ सकता? देखो 5 वाली पॉसिबिलिटी दो है ना आपके पास। क्या आ सकता है? इज पॉसिबल, हो सकता है, मे बी 5 आ जाए। राघव हैज स्कोर्ड 5 पॉइंट्स इन डिबेट राउंड, ये डिबेट राउंड में क्या 5 ला सकता है? यस, 5 वाले पॉसिबिलिटी ना आपके पास, 5 ला सकता है। क्या दोनों भी ट्रू हो सकता है? हाँ, ये ना 5 5 6, 5 5 6, ये 5, ये 5, ये 6 और ये 5 पॉसिबल है। राघव स्कोरिंग 4 पॉइंट्स इन डिबेट राउंड, देखो डिबेट में अगर इसके 4 आ भी गए, यहां 4 आ गए, यहां 5 और यहां 6 आ गए, सब पॉसिबल है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर ट्रू। क्या प्रॉब्लम था यहां पे? हमारी हैबिट नहीं होती पॉसिबिलिटी बनाने की। मुझे क्या चाहिए, 16 चाहिए। आई नीड टू ऐड 3 नंबर्स एंड फॉर्म 16। तो मैंने 4 से शुरू किया, 4 + 5 किया 9, 9 + 7 16। 4 के बाद आगे गया 4 + 6 10, 10 + 6 16, 4 6 6। 4 के बाद 8 गया, 4 + 8 12 + 4 16। लेकिन 2 का एडिशन प्राइम चाहिए, प्राइम इज अ ऑड नंबर। 4 8 4 नहीं हो सकता, 4 6 6 नहीं हो सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 4 5 7। ओनली पॉसिबिलिटी 4 5 7। अब 5 पे गए, मैंने कहा 5 + 6 11, 11 में और क्या चाहिए 5, तो 5 5 6 बन गया। 5 + 7 12 + 4, ये तो पहले ही बन चुका है 5 + 7 + 4। तो 2 ही पॉसिबिलिटी बने 16 बनाने के, और प्राइम बन भी रहा है। देखो 5 + 6 11 बोला ना यहाँ पे, सम ऑफ द 2 नंबर्स इज प्राइम, सम ऑफ द 2 वैल्यूज इज प्राइम। 5 + 6 11 प्राइम,
4 + 7 11 प्राइम। तो ये करता है कैट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ क्या चेक कर रहे हो, क्या अज्यूम कर रहे हो। एनी डाउट्स इन दिस? Moving on. Chalo. This is 6. This is 6. This is 8. This is 5. This is 7. This is 6. और कोई हमें कंफर्मेशन नहीं मिला था. Suppose if Sanvi scores 5 points in debate round and still wins Student of the Year trophy by scoring 1 more point than Avanya. अवन्या का 35 है, सानवी को हम 36 देने वाले हैं. सानवी इज गोइंग टू स्कोर हाउ मेनी पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स इन व्हाट? इन डिबेट राउंड. डिबेट राउंड में इनको 5 पॉइंट्स देने हैं. तो ऐसा लग रहा है कि देखो ये 5 + 5 10 + 6 16 से अगर 36 जाना है, ओनली पॉसिबिलिटी इज 10 and 10. और कोई स्कोप ही नहीं है. इफ यू वांट सानवी टू विन और अवन्या से आगे भी जाना है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 10-10. Raghav has been given opportunity to reappear any 2 rounds. राघव को बोला तू यार 2 राउंड ले ले, तू 2 राउंड ट्राई कर ले. In how many combinations Raghav can choose to win prestigious Student of the Year trophy? थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है. व्हाट डू यू मीन कॉम्बिनेशन? राघव को बोला तू 2 एग्जाम अपीयर कर ले, तेरी मर्जी है. 2 एग्जाम अपीयर कर ले और जीत ले शहर, मैक्सिमम कर ले अपने स्कोर को. तो वो कौन से 2 एग्जाम अपीयर करेगा? कितने कॉम्बिनेशन हैं उसके पास? तो देखो उसके सामने एग्जाम है कितने? 3. 3 में से अगर आप 2 एग्जाम भी अपीयर करोगे तो हो सकता है डिबेट राउंड करे एंड बी प्लान करे, हो सकता है डिबेट राउंड करे और केस स्टडी करे, हो सकता है बी प्लान करे और केस स्टडी करे. लेकिन अगर उसको जीतना है, अगर मुझे इसे जिताना है, तो मिनिमम स्कोर कितना देना है? 37. क्या बोला आपने? कि राघव को स्टूडेंट ऑफ द ईयर जीतना है. ऑलरेडी अवन्या का टोटल जो है वो 35 है, सानवी का एक ऊपर है, हमने वो भी कर दिया. अब इसको 37 कैसे दे सकते हैं? इसका तो 13 है. 13 37 24 चाहिए आपको. यू नीड हाउ मेनी पॉइंट्स? यू नीड 24 पॉइंट्स. तो मैं एक बार ट्राई करता हूं 24 बनता कैसे है. 24 कैन बी 10 + 10 + 4. 24 कैन बी 8 + 8 + 8. 24 कैन बी 10 + 9. कितना होता है? +5. ऐसा 5-6 पॉसिबिलिटी बनेगा. दीज आर पॉसिबिलिटीज. तो आपसे यही पूछ रहा है कैसे बन सकता है. अब देखो आप इसको 2 बार 10 दे सकते हो क्या? यहां पे और यहां पे. यहां पे और यहां पे तो कभी 10 आना नहीं है क्योंकि 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो 10 यहां आ सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. मैं उसके बिना भी ट्राई करता हूं. देखो मैं अगर इसको यहां पर 8 का स्कोर दे दूं, 8 का, यहां पर मैं इसको क्योंकि 8 नहीं दे सकता, मैं इसको 9 का स्कोर दे दूं, 8 9, एक कम, तो यहां 7 देना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल.
विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैं 8 नहीं दे सकता, दिस कैन नॉट बी 8, ये 8 नहीं हो सकता। इफ आई मेक इट 9, इफ आई मेक इट 9, तो यहां पर देखो 9 आ सकता है, यस। 9 प्लस 9 18, 18 तो ये क्या हो जाएगा 6, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अरे ऊपर भी तो 9 लिखा हुआ है, 9 कैसे दे रहे हो यहाँ पे? मतलब कि 24 बनाने के लिए इसको 10 होना पड़ेगा बेटा, दिस हैज टू बी 10, तो 24 नहीं बनेगा। अभी कितना चाहिए आपको? 14 पॉइंट्स चाहिए। हाउ कैन यू जनरेट 14? 14 can be 14 can be 9 plus 5, 14 can be 7 plus 7, 14 can be 8 plus 6। देखो यहां पर 8 तो डाल नहीं सकते आप, ये 6 कर सकते हो आप, ये 6 तो ये 8, तो ये एक कॉम्बिनेशन आ गया आपका, एक पॉसिबिलिटी आ गया, एक पॉसिबिलिटी आ गया आपका। और लेट अस सी मोर। कैन आई हैव 7 8? 9 प्लस 8 7 कैसे होगा? हमें 24 चाहिए ना, 24 अगर चाहिए बेटा 9 साथ आई हैव 9 5, ये 9 है, ये 9 है, तो ये 5 5 तो हो नहीं सकता। सो इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स, इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स अगर आपको बनाना है ऐसे 24, तो 10 यहां आएगा डेफिनेटली, 10 के साथ में हमें 14 चाहिए। 14 कैन बी 8 6, अरे 8 6 इसको चाहिए ना, सिली मिस्टेक, प्लस माइनस। ये देखो ये तो 10 है, 9 थोड़ी, तो 10 है, ये तो 10 है आपका, ये 10 है, तो ये आपका 6 8, ये 6 ये 8, ये 10 ये 9, तो ये 5 5 तो ऑलरेडी है, तो ये 9 ये 9, तो ये 5 विच इज नॉट पॉसिबल। तो स्कोर एक ही है आपका, एक ही पॉसिबिलिटी है, 10 6 एंड दिस। एग्जाम वो 3 लिख सकता है, ये दोनों एग्जाम, ये दोनों एग्जाम और ये दोनों एग्जाम। एग्जाम लिखने के पॉसिबिलिटी 3 है आपके। टेक योर टाइम। मैं पहले स्कोर कंप्लीट करना चाह रहा था, आई वाज होपिंग कि इसमें भी पॉसिबिलिटी आ जाए। अगर इसमें पॉसिबिलिटी आ जाए तो आई कैन इंक्रीज द चॉइसेस, बट एक ही है 10, इसको होना पड़ेगा 6, इसको होना पड़ेगा 8। यहां 9 देखना बेटा, ये अगर 9 है तो ये 5 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये 9 है तो ये 5 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। नो, नो। 7 7 भी करेंगे तो ये 7 यहां पर, ये 7 यहां अड़ंगा करेगा, तो 3 ही पॉसिबिलिटी है। क्या होता देखो, अगर स्कोर में पॉसिबिलिटी और होती, आपकी स्कोर में और पॉसिबिलिटी होती, तो 3 पॉसिबिलिटी एग्जाम के, 2 पॉसिबिलिटी स्कोर के, तो आंसर 6 आता आपका। लेकिन स्कोर का एक ही पॉसिबिलिटी है फिक्स, ये वाला, केवल 3 पॉसिबिलिटी आपका एग्जाम अपियर करने का। ऑप्शन ए, यस, दिस इज कैट लेवल, नो डाउट अबाउट इट, ये कैट लेवल बेटा। कंफर्मेशन ऑन दिस? मूविंग ऑन, कंफर्म दो इस पे।
Good, good. Moving on to the next set. ये लो, एक बार रीड करो पूरे को. Read everything. It's a very standard kind of question. It's an age-old question. इसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको कि मैक्सिमा कैसे करना है स्कोर को और मिनिमा कैसे करना है स्कोर को. रीड फ्रॉम हियर टिल हियर एवरीथिंग.
I hope everyone is trying to solve the question. सबने पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा what is being said. You are trying to select a team with minimum score. You are trying to reject a team with maximum score. You are also trying to find how many matches are there in the tournament. कोई भी टीम का नाम तो गिवन नहीं है. It is not about कौन सा टीम. Any team with highest score must be rejected. Any team with the lowest score must be selected. ऐसे questions हैं. Should I start or do you guys need more time? Do you want me to start? Chalo, let us start. 14 teams that took part in Cricket World Cup were divided into two pools, Pool X and Y, each having 7 teams. In each pool, every team plays one match with every other team. 2 points are awarded for a win, 1 point for a tie, 0 point for a loss. जीतोगे 2 पॉइंट मिलेगा, हारोगे 0 मिलेगा, अगर ड्रॉ कर दिया तो बेसिकली दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा. At the end of pool stage, top 3 teams in terms of points scored advanced to the next round called Super 6 stage. In the Super 6 stage, all teams start with 0 points.
and 3 teams which advance from pool X play one match against 3 teams that advance from pool Y. The points are awarded as in the pool stage. Point system यही है, जीतोगे 2, हारोगे 0, ड्रॉ करोगे तो 1-1 each. At the end of the matches, top 4 teams in terms of point score advance to semifinals, and the winner of the semifinals play the finals. If 2 or more teams end up with the same number of points at the end of pool stage or Super 6 stage, team with the better net run rate is placed higher. जिसका रन रेट हायर होगा उसको हम आगे भेजेंगे. तो सवाल कैसे हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड? What is the least number of points with which a team can advance to Super 6 stage? What is the maximum possible number of points with which a team is eliminated at the pool stage? What is the minimum number of matches won by a team that reaches finals? कम से कम जिता के फाइनल पहुंचाना है. In the pool stage, if in X no 2 teams at the same point and so on, कुछ बातें हो रही हैं. ठीक है. तो सबसे पहला सवाल है मैचेस कितने हैं, एंड थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लेते हैं. पूल एक्स एंड पूल वाई, हाउ मेनी टीम्स? 7 टीम्स, ए बी सी डी ई एफ जी. तो यहां पर भी 7 टीम्स होंगे, उनके नाम नहीं लिख रहा मैं, यू इमेजिन 7 टीम्स आर देयर. फिर जो एक्स है यहां से 3 टीम्स विल कम. ये एबीसी मैंने ऐसे लिख दिया, टीम्स कैन बी एनी. वैसे ही वाई में से देयर विल बी 3 टीम्स, लेट अस कॉल देम पीक्यूआर. फिर ये आपस में मैच खेलेंगे, फिर टॉप 4 टीम आगे जाएंगे. अब देखो टॉप 4 कहा है, ये नहीं कहा है कि 2-2 टीम जाएंगे एक्स एंड वाई से. रीड दिस पार्ट. X will play one match against each team of Y. The points are awarded same as the pool stage. At the end of matches, top 4 teams in terms of point advance to semifinals. अब इनमें जो जीतेगा वो आगे आएगा, इनमें जो जीतेगा वो आगे आएगा, और यहां पर फाइनल्स होंगे. अब हो सकता है ये 3 टीम एक्स के हो जाए, 1 वाई का हो जाए. ये हो सकता है 2 एक्स के 2 वाई के. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. एक्स एक्स वाई वाई हो सकता है, एक्स 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 वाई हो सकता है, या वाई 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 एक्स हो सकता है. तो ये पॉसिबिलिटी हम बाद में देखेंगे. लेट अस काउंट हाउ मेनी मैचेस आर देयर. अब कैन आई से ए विल प्ले वन मैच अगेंस्ट बी सी डी ई एफ जी. तो ए के 6 अपोनेंट है. A will play with B, A will play with C, A with D, A with E, A with F, A with G. A के 6 मैच हो गए. अब वापस B को क्यों खिलाओगे? A से आगे जाओ. B will play with C 1, with D 2, with E 3, with F 4, with G 5. तो B के आगे 5 मैच हो गए. C के 1 2 3 4, D के 3, E के 2, F का 1. तो ये एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है. दिस इज 7 + 7 + 7, दैट इज 21. अगर यहां पर 21 मैचेस हैं, देयर आर 21 मैचेस हियर, तो 21 मैचेस यहां पर भी होंगे. फिर यहां पर ए विल प्ले 3 मैचेस, बी विल प्ले 3 मैचेस, सी विल प्ले 3 मैचेस, तो यहां पर 9 मैचेस होंगे. यहां पर 1 and 1 2 मैचेस होंगे, और फाइनल में 1 मैच होगा. तो हाउ मेनी मैचेस आर देयर? 21 + 21 + 9 + 2 + 1. ऐड करके आंसर बताओ. सिंपली मैन्युअली काउंटिंग कितने मैचेस होंगे. कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करो, यू नो कॉम्बिनेशन, तो और जल्दी बन जाएगा आपसे, क्योंकि 7 में से 2-2 के पेयर बनाने हैं. तो 7C2 कॉम्बिनेशन, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये 7C2 का ही वैल्यू है. 7C2 यहां, 7C2 यहां, तो इंटू 2 +9 यहां, +2 सेमीफाइनल, +1 फाइनल. बताओ एडिशन कितना आ रहा है. दिस इज 42 + 9 51, 51 + 3 54 मैचेस. There are going to be 54 matches. Any doubt in this? Let me know.
Guys, confirmation, is this clear? Very good. Others confirm? Is the answer clear? 54 क्यों? Why 54? गुड, आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन. What is the least number of points with which a team can advance to Super 6? हमें कोई भी एक टीम को कम पॉइंट देना है और उसको सुपर 6 स्टेज में भी भेजना है. तो एक छोटा सा पैटर्न आप समझो. मैं एक ही ग्रुप में ध्यान दे रहा हूं, एक्स में. इसके बाद एक्स वाली टीम आपस में खेलेंगे एंड दे विल गो टू सुपर 6. सुपर 6 में क्या होगा? एक्स के 3 टीम होंगे, वाई के 3 टीम होंगे. मुझे केवल इनको यहां तक पहुंचाना है, सुपर 6 तक. और उनको मुझे क्या करना है? पॉइंट्स कम से कम देने हैं. लेट अस से ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, ये 7 टीमें हैं. अब देखो, कभी भी कम पॉइंट वाली टीम को आगे भेजना है या ज्यादा पॉइंट वाली टीम को रिजेक्ट करना है, उसमें इक्वलाइज करते हैं. किसको करते हैं? अगर कम स्कोर वाली टीम को आगे भेजना है तो लोअर स्कोर्स को इक्वलाइज करो. व्हाट डज इट मीन? देखो, मैंने ए को बोला तो बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, किसी के साथ भी खेले. ए किसी के साथ भी खेले, अगर ए जीतेगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, इसको 0 मिलेंगे. अगर बी जीतेगा तो इसको 2 मिलेंगे, इसको 0 मिलेंगे. अगर ड्रॉ भी हो गया तो दोनों को 1 ही मिलेगा. व्हाट आई एम सेइंग इज, एवरी टाइम अ मैच हैपेंस, हर बार अगर मैच होगा तो हर एक मैच में 2 पॉइंट्स बटेंगे. हर एक मैच 2 पॉइंट के बराबर है, चाहे ए को जाए, चाहे बी को जाए, चाहे इक्वल हो जाए. तो एवरी मैच इज वर्थ 2 पॉइंट्स. ये नहीं होगा ए और बी ने गेम खेला और उसके पॉइंट सी को चले गए, वो चीटिंग हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. तो व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो, मैंने ए से बोला तुम्हारे अपोनेंट है बी, सी, डी, ई, एफ, जी. तुम्हारे 6 अपोनेंट है. तुम सबसे मैच जीतो, 12 पॉइंट ले जाओ. क्यों भी समझ में आएगा आपको. मैंने बी से कहा तुम्हारे अपोनेंट है सी, डी, ई, एफ, जी. तुम्हारे 5 अपोनेंट है, पांचों मैच जीत जाओ, 10 पॉइंट. देखो, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था देयर आर 21 मैचेस, हर एक मैच 2 पॉइंट का है. तो जो पहला राउंड है ये 42 पॉइंट्स के बराबर है. मैंने इन दोनों को दे दिया 12 एंड 10. ठीक है. अब क्योंकि मुझे ना 3 टीम्स को भेजना है, 3 टीम्स को, मैं डेलिबरेटली सी को कट करके अब मैं इन सबको बराबर कर दूंगा. आपके पास 22 पॉइंट्स चले गए ए और बी के, ये ए और बी के पॉइंट्स चले गए, बच गए 20 पॉइंट्स. अब 20 को कहां बांटना है? 1, 2, 3, 4, 5 में. मैं बोलूंगा 4-4 पॉइंट रखो. लैंग्वेज सुनना, क्योंकि ये लोअर लेवल के टीम्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, और मैंने इक्वेट कर दिया. अब कोई भी टीम जाए, चाहे ई जाए, चाहे डी जाए, चाहे सी जाए, वो टीम कितने पॉइंट से जाएगी आगे? 4 पॉइंट्स मिनिमम. अगर मैं इनको अनइक्वल करूं, मैंने मान लो सी को 1 पॉइंट ज्यादा दे दिया, तो किसी एक का पॉइंट कम हो जाएगा. अगर पॉइंट कम हो गया, अब सी सेलेक्ट होगा. अब सी सेलेक्ट होगा तो 5 पॉइंट्स वाला सेलेक्ट होगा, पॉइंट ज्यादा हो गए. तो कभी भी लीस्ट को सेलेक्ट करना है मिनिमम पॉइंट से, तो लोअर टीम्स को इक्वलाइज करो. सर, हमें कितने टीम इक्वलाइज करने हैं? आपको कितने सिलेक्शन चाहिए? आपको 3 सिलेक्शन चाहिए. उसमें से 2 को टॉप पे डाल दो, इनको टॉप स्कोर दे दो. अब बाकी सबको इक्वलाइज करो, तो थर्ड टीम बाय डिफॉल्ट लो स्कोर वाली जाएगी. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस. देखो, समझ रहा है क्या? क्योंकि आपने अगर लोअर टीम को अनइक्वल किया तो ये 5 पॉइंट आगे चला जाएगा. इट इज नॉट मिनिमम. मिनिमम कितना ऑप्शन है अपना? 4. How did we analyze this? Every match has 2 points to be given. या तो ए को दो, या तो बी को दो, या इक्वली दे दो. Every match is worth 2 points.
अब हाउ मेनी मैचेस वी हैव? 21 मैचेस वी हैव इन द राउंड 1। 21 मैचेस, दो दो पॉइंट्स के हिसाब से 42 पॉइंट्स हमको बांटने थे, क्योंकि मैंने ए और बी को टॉप स्कोर दे दिए। अब जो बच गया, आई एम इक्वलाइजिंग। इक्वल करने से कोई ना कोई टीम क्या सेलेक्ट होगी? बेस्ड अपॉन देयर नेट रन रेट। नेट रन रेट पे कोई ना कोई टीम सेलेक्ट होगी। कंफर्मेशन ऑन दिस, समझा क्या आपने को ये? गुड। अदर्स कंफर्म, समझा क्या आपने को ये? देखो, बायोलॉजिक, अगर आप दो लोगों को टॉप पॉइंट्स दे रहे हो, यू आर गिविंग टू पीपल टॉप पॉइंट्स, तो बाकियों के बाय डिफॉल्ट कम होंगे ना। टॉप पॉइंट का मतलब उनको सारे विनिंग दे दिए। तो ए के नीचे देर आर 6 अपोनेंट्स, ए के नीचे देर आर 6 अपोनेंट्स जो ए से खेलेंगे। मैंने ए को सारे विनिंग दे दिए, 6 विनिंग्स 12 पॉइंट्स ए को दे दिए, रखो। बी के नीचे 5 अपोनेंट है, पांचों विनिंग दे दिए मैंने बी को, तो बी हैज गॉट 10 पॉइंट्स, 5 into 2। अब मैंने कहा क्योंकि तीन तीन लोग सेलेक्ट होंगे, ए एंड बी कंफर्म हो गए, ए एंड बी आर द टॉप स्कोरर, ए एंड बी कंफर्म हो गए। अब मैं डेलिबरेटली क्या करूंगा, थर्ड पोजीशन के लिए सबको इक्वेट कर दूंगा। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम इक्वेटिंग लोअर स्कोर्स। नीचे के स्कोर्स को आप बराबर कर रहे हो। वेरी गुड, यस, यही करना है बेटा। लोअर को सेलेक्ट करना है तो नीचे के स्कोर बराबर करने हैं। चलो, अब इसमें क्या क्वेश्चन है? What is the maximum possible points that can be scored by a team that is eliminated in the pool stage? वही जो राउंड 1 है उसमें मेरे को टीम को बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है। मतलब देना क्या है? मैक्सिमम पॉइंट देना है। अब देखो, एक ही पे ध्यान दो, एक्स पे ध्यान दे दो। लेट अस से द टीम्स आर ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी। अब देखो, आपको मिनिमम को भेजना था, आपने लोअर को इक्वेट किया, लोअर को इक्वेट किया, मिनिमम को आगे भेजना है। अभी मैक्सिमम को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, भगाना है। मतलब मैं ऊपर के स्कोर बराबर करूंगा। अब देखो, अगले राउंड में मुझे टीम कितने चाहिए? मुझे 3 टीम चाहिए सुपर 6 में। इफ आई, ध्यान से सुनना, इफ आई मैनेज टू मेक इनके स्कोर इक्वल, अगर मैं इनके स्कोर आपस में इक्वल कर दूं, क्योंकि अपर टीम्स है, मैं इनको मैक्सिमम स्कोर दूंगा आपस में, सबको बराबर दूंगा, तो इन चार में से एक न एक टीम को बाहर निकालना पड़ेगा, और जो आगे टीम्स जाएंगी वो बराबर स्कोर लेकर जाएंगी। तो आपकी टीम एलिमिनेट होगी मैक्सिमम स्कोर के साथ में। कभी भी मैक्सिमम स्कोर देना है, ऊपर की टीम को इक्वेट करो, कितने वो ध्यान दो, क्योंकि मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं। एलिमिनेट, मैं 3 को आगे भेज सकता हूं, आई कैन सेंड 3 टीम्स फॉरवर्ड, चौथे को एलिमिनेट करना है, तो 4 का स्कोर बराबर करो। अब देखो कैसे करना है, सुनना। हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू हैव? 42 पॉइंट्स। लैंग्वेज देखो, ई जब एफ से खेलेगा
कोई भी जीते, आपके 2 पॉइंट जाने ही जाने। एफ जब जी से खेलेगा 2 पॉइंट जाने ही जाने। जब ई खेलेगा जी के साथ में 2 पॉइंट जाने ही जाने। मतलब कि आपस में इन तीनों टीम्स के मिनिमम 6 पॉइंट्स हैं। क्योंकि मैंने आपसे बताया था, अगर कोई पी और क्यू आपस में मैच खेलता है, उसके पॉइंट थोड़ी ना आप आर को दे दोगे, जो खेलेगा उसको पॉइंट मिलेगा। मैं क्या चाह रहा हूं, ऊपर की टीम्स को पॉइंट मैक्सिमम मिले। मैंने इन तीनों टीम्स का आपस में देखा, अगर ये मैच खेलेंगे कोई भी जीते 2 पॉइंट जाएंगे, ये मैच खेले 2 पॉइंट जाएंगे, ये मैच खेले 2 पॉइंट जाएंगे, 6 पॉइंट तो इनके बटने ही बटने हैं। तो व्हाट इज 42 माइनस 6? 36। अब इस 36 को अगर मैं इक्वली बांट दूं, यहां पे 9 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट लाकर एक टीम बाहर होगी, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट्स। अगर आप इनको अनइक्वल करोगे, अनइक्वल करने के लिए अगर आपने इसको 10 कर दिया, तो इसका एक नंबर कम करना पड़ेगा 8। अब रिजेक्ट कौन सी टीम हुई? ये टीम रिजेक्ट हुई, तो ये रिजेक्शन का स्कोर 8 है। पहले कितना स्कोर था? 9। मुझे मैक्सिमम स्कोर चाहिए, तो मैं वही बता रहा हूं, इक्वेट करके सेलेक्ट करो, इक्वेट करके रिजेक्ट करो, आपको मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमा चाहिए, ऊपर की टीम को इक्वेट करो। मिनिमा चाहिए, नीचे की टीम को इक्वेट करो। इट्स अ वेरी वेरी लॉजिकल सेट। अब आप बोलोगे सर 9 पॉइंट कैसे आएंगे? कैसे भी आए, हमें 42 पॉइंट्स तो बांटने ही थे। मैं एक तरीका समझाता हूं, देखो, ये जो ए है, ये इन तीनों से मैच जीत गया, तो 6 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गए। बी इन तीनों से जीत गया, 6 पॉइंट 6 पॉइंट 6 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गए। अब और कई तरीके हैं। अब जब ए खेलेगा बी सी डी से, मैं सबको ड्रॉ कर दिया, 3 पॉइंट मिल गए, क्योंकि सबके ड्रॉ हैं तो 3 3 पॉइंट सबको मिल गए, बन गए 9 पॉइंट्स। पॉइंट्स लाने के बहुत सारे तरीके हैं, दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज कितने पॉइंट दे सकते हो मैक्सिमम, और फिर भी रिजेक्ट कर दिया टीम को आपने। बड़ा ही सिंपल है, यस। लोअर का 6 कैसे? आई एक्सप्लेन दैट वन मोर टाइम। क्योंकि देखो, मुझे पॉइंट मैक्सिमम करने हैं ऊपर के, मैं देख रहा हूं कि नीचे वाली टीम का स्कोर क्या हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम। मिनिमम से मिनिमम नीचे वाली टीम को 6 पॉइंट्स देने हैं। अब वो 2-2-2 बराबर दे दो ई एफ जी को, या 4-2-0 करो, आपके ऊपर है। नीचे वाली टीम को कैसे भी दो, आप 6 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे। यू मस्ट गिव 6 पॉइंट द लोअर टीम्स, बाकी सब पॉइंट ऊपर दे दो 36। एनी डाउट सो फार? वेरी गुड, चलो। मिनिमम से मिनिमम कितने मैचेस जिता के यू कैन सेंड अ टीम टू फाइनल्स? आपको मिनिमम से मिनिमम जिताना है और उसको फाइनल तक पहुंचाना है। मिनिमम मैचेस, देखो, इट इज नॉट अबाउट पॉइंट्स।
गिव मी सेकंड विद द पेन। आपको मिनिमम पॉइंट्स नहीं बोला है, मिनिमम मैचेस बोला है। तो एक थोड़ा समझो, मुझे फाइनल पहुंचाना है, फाइनल जिताना भी नहीं है। दे नीड टू रीच फाइनल। तो मैं अगर एक्स पे ध्यान दूं, इसमें 7 टीम्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ध्यान सुनना, मैंने सारे मैच ड्रॉ कर दिए, ऑल मैचेस, ऑल 21 मैचेस आर ड्रॉ और टाई। अब वो सबके स्कोर बराबर हो गए, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कोई ना कोई 3 टीम तो यहां पहुंचेंगे। अभी और सुनना, मुझे जिताना कम करना है, जिताना कम करना है। मैंने ए और बी को खिलाया, मैंने ए को हरा दिया, ए को हरा दिया, ए को हरा दिया, बी को हरा दिया, बी को हरा दिया, बी को हरा दिया। मैंने एबीसी को सारे मैच हरा दिए। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि सेमीफाइनल में जाने के लिए वाई के 3 टीम्स हैं, पी क्यू आर। कोई ना कोई तो टीम आएगा ना एबीसी का। देखो, एबीसी के सारे मैच ड्रॉ थे, ऑल मैचेस वर ड्रॉ। एबीसी के सारे मैचेस क्या हैं, लॉस हैं। उसके बाद भी वो टीम यहां तक आ चुकी है। अभी तक कितने विनिंग है, 0 विनिंग है। इट कैन बी एनी टीम, ए बी और सी, 0 विनिंग है। लेकिन जब फाइनल इनको पहुंचाओगे, अब ये मान लो टीम ए है, अगर आर के साथ खेलेगी, तो ये कंडीशन देखो, यहां पे देखो, विनर्स ऑफ द सेमीफाइनल विल प्ले फाइनल। जो विनर होगा वही खेलेगा फाइनल। तो अगर मुझे ए को फाइनल तक पहुंचाना है, ए को फाइनल तक पहुंचाना, अब तो जिताना पड़ेगा आपको। तो टू रीच हियर, ए ने कितने विनिंग डाले, ओनली 1 विनिंग। मिनिमम से मिनिमम, लोएस्ट से लोएस्ट पॉइंट कितने लेके टीम वहां तक पहुंच सकती है। Good. No doubts? Good. Try this. In pool stage, if in pool X, no two teams scored the same number of points, आपको same points नहीं देने हैं, then the points scored by a team
that reaches Super 6 stage is least. फिर से मुझे लो स्कोर देना है, लो स्कोर देना है और उनको सेलेक्ट करना है, लो स्कोर देके सेलेक्ट करना है. अगेन आई विल वर्क ऑन लोअर पोर्शन ऑफ द टीम्स. पूल एक्स की बात कर रहे हैं. टीम्स आर ए बी सी डी ई एफ एंड जी. मेरे पास 42 पॉइंट्स हैं. आई हैव 42 पॉइंट्स विथ मी. मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं इन दोनों को टॉपर बना दूंगा. इनको 12 पॉइंट्स और इनको 10 पॉइंट्स. कैसे? ए के नीचे 1 2 3 4 5 एंड 6. ए के नीचे 6 टीम्स हैं, मैंने ए को सब जिता दिया. बी के नीचे कितने टीम्स हैं? 5, सब जिता दिया. तो ए और बी तो आ चुके हैं. सुपर 6 में ए और बी आ चुके हैं. अब मैं चाहूंगा वो टीम आए जो इनमें से हो बट कम से कम स्कोर लेकर आए. डू यू रिमेंबर मैंने इनको बराबर कर दिया था अर्लियर वाइल एक्सप्लेनिंग. मैंने कहा था ये बराबर है. 4 4 4 4 और 4. अब मैं इनको अनइक्वल करना शुरू करता हूं. देखो, जो इनका और इनका है, जो मैच जो भी था, मैं अब अनइक्वल करने के लिए अगर किसी एक का स्कोर बढ़ाऊंगा तो मुझे एक का कम भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट स्कोर चाहिए. मुझे डिस्टिंक्ट स्कोर चाहिए. तो ये 5 है तो ये 3 है. सिमिलरली ध्यान देना, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का मैच कराऊं, मैंने इनको +1 दिया, इनसे एक नंबर ले लिया, इनका कितना हो गया? 5 and 3. लेकिन बराबर नहीं कर सकते आप. यू कैन नॉट मेक दिस इक्वल. ये अनइक्वल होना चाहिए. इज इट पॉसिबल फॉर मी टू सेलेक्ट विथ अ स्कोर ऑफ 6? +1 में क्या हो? 2 टीम बराबर हो गए. आई एम लुकिंग फॉर डिफरेंट अप्रोच नाउ. देखो मैंने क्या किया, मिनिमम से मिनिमम देना है. तो मैंने इससे एक नंबर छीन के इसको दे दिया. इनको भी अलग अलग करना है. अब मैं 2 नंबर छीन के दे सकता था इनको. 2 नंबर छीन के तो 6 बन जाएगा. वो करो, डिस्टिंक्ट तो करना ही है आपको. तो एक छीनने से नहीं बनेगा काम आपका. मैंने 2 नंबर इनके कम कर दिए, क्योंकि ये फिक्स है आपका. टोटल 42 फिक्स है. इनसे 2 नंबर लेके इनको 2 नंबर दे दिए, तो इनका 6 हो गया, इनका 2 हो गया. डू यू सी? अब कोई भी स्कोर सेम नहीं है. एक स्कोर 12 है, एक स्कोर 10 है. ये वाला 6 बन गया, ये वाला 5 बन गया. 4 3 2. नो 2 स्कोर्स आर सेम. तो कौन सा मिनिमम सिलेक्शन है? 6 मार्क्स, 6 पॉइंट्स. तो वो नाम कुछ भी हो टीम का, सी हो चाहे डी हो चाहे ई हो, लोअर पोर्शन में आई नीड डिस्टिंक्ट स्कोर्स. मैंने पहले उनको इक्वेट करके बाद में डिस्टिंक्ट बना दिया. I first made those scores equal and then made them distinct. Guys, any doubt in this? Done. तो ये आगे वाले सेट विल पिक अप इन द नेक्स्ट सेशन. हाँ, इसका डेरिवेशन सिखाना पड़ेगा. वेरी रेयरली इट हैपेंस कि हम पहले थ्योरी कराते हैं. वेरी रेयरली. LRDI में केवल सेट्स है जिसमें थ्योरी डेफिनेटली लगता है. सेट थ्योरी, सेट थ्योरम.
ये है सेलेक्टिंग बटन, सेलेक्टिंग कॉइन्स, इसमें थ्योरी लगेगा आपको इजीली 20-25 मिनट्स का थ्योरी लगेगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विनिंग नंबर. उसका डायरेक्शन दिखाना पड़ता है. इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. अब इसको घुमा फिरा सकते हैं, बड़े सिखाना पड़ेगा हमें आपको. Yeah, in the next session we'll pick up games and tournaments. Tomorrow you have verbal ability. One of the students had asked कि 10:30 तक कर दो, तो we are sticking to that. Yes, done for tonight. Yes, good night. Yes, by morning I'll upload the PDF for this as well. ये पूरे जो हमने सेट किए, you'll get the PDF. Yes, yes. No guys.